हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, इस कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग देयर इज थ्री बेसिक टर्म: कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। Now first term is the cost. What is cost? So inclusion of all the expenditure expenses up to the sales is called cost. Now बेटा गुड्स इज रेडी फॉर सेल, और जितना भी एक्सपेंसेस आपने कर दिया अप टू द सेल्स is called cost of the goods. Now the next terminology is costing. So costing is a method or technique for determination of cost. Costing is a method or technique for determination of cost. Whenever you start the production or commencement of production of any of the goods, so definitely first बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे cost of the product. मतलब without calculate of estimation of cost of the product, definitely nobody can manufacturing the product. आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कुछ गुड्स बनाना है, तो पहले आप एस्टिमेटेड बेसिस पर उसकी कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे. सो व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग इज ए मेथड और टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट. सो देयर इज टोटल 7 टाइप ऑफ मेथड and so many type of technique to determination of cost. Different type of manufacturing concern, different type of industry will use different type of method of costing to calculate the cost. Like the method is job costing, batch costing, process costing, contract costing, operating costing, single unit costing and multiple costing. Total 7 type of method of costing. According to the nature of the industry, company use different type of method according to the nature of the industry. Just example, metro. So metro is providing the service. What is the object of the metro? But what is the object of the transport company? Provide the service. तो बेटा ये कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग. एंड अकॉर्डिंग टू द मेथड वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट यूनिट ऑफ द सर्विस. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? सपोज बेटा मैंने यहां पे लिख दिया 1010. सो नाउ व्हाट इज 10? हियर 1010 इज नथिंग. 1010 इज नथिंग बिकॉज सिंपल नंबर हैव नो वैल्यू. जब तक कि बेटा हम इसके साथ ना लगा दें कि ये केजी है, लीटर है, मीटर है या क्या है. Is this clear? So what is cost unit? Cost unit means expressed in term of unit is called cost unit. या तो बेटा ये 10 kg होगा, या ये 10 लीटर होगा, या ये 10 मीटर होगा, और या ये 10 रुपीज होगा.
ठीक है, तो मैंने अभी आपको बात किया मेट्रो ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये कौन सा मेथड यूज करेंगे सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एंड हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट, तो इनकी बेटे कॉस्ट क्या निकलती है, कॉस्ट पर पैसेंजर cost per passenger and per kilometer. Like just example, suppose second example, oil refinery company, oil. So बेटा ऑयल कैसे बनता है, जस्ट एग्जाम्पल फॉर द मस्टर्ड। पहले हम मस्टर्ड को मशीन में डालेंगे, एक प्रोसेस हुआ तो रॉ ऑयल बनके तैयार होता है, दूसरा प्रोसेस हुआ फिर फिल्टर ऑयल बनके तैयार होता है, नेक्स्ट प्रोसेस किया फिर रिफाइन होता है ऑयल, अगेन फिल्टर। दैट मीन गुड्स, हमारा ऑयल कैसे बन रहा है, अलग अलग प्रोसेस में बन रहा है। सो नाउ द मेथड इज द प्रोसेस कॉस्टिंग। अब बेटा ऑयल की यूनिट क्या होगी, पर गैलन और पर लीटर। So there is total 7 type of method, and some of the technique is marginal costing, standard costing, budgetary control, throughput accounting. These are some technique. So what is costing? Costing is a method or technique for determination of cost. Now the next terminology is cost accounting. So recording of costing data in a systematic manner is called cost accounting, like financial accounting, but there is slightly different, but the recording method is same either in financial accounting or cost accounting. Clear? Now next concept is cost includes different type of elements. Cost includes different type of element. So now the next concept is element of cost. Element of cost. Whenever we want to calculate the cost, then first we have to identify the element of cost. So there is basic 3 element of cost. Number first is material. Number second is labor. And number third is expenses. So basically 3 element of cost, number first material, number second labor, or number third is expenses. And all the element of cost is further divided into 2 category or 2 part. Number first direct material, and number second is indirect material. Direct labor and indirect labor. And direct expenses and indirect expenses. All the element of cost is divided into 2 parts: direct, indirect, direct, indirect, direct and indirect. Now question is, what is direct expenses? What is direct material? What is direct labor? So expenses or any element of cost which are directly related to production of product, is called direct expenses.
or expenditure which are not directly related to the product is called indirect expenses. Clear? Now first, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. बेटा टीचर जो आपको पढ़ा रहा है और जो फॉरमैन और जो लेबर जो डायरेक्टली मशीन को चला रहा है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, देन सच लेबर कॉस्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और जो बाहर वॉचमैन खड़ा हुआ है, बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, उसकी जो सैलरी जा रही है, सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. आपके केस में आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका पेमेंट क्या होगा? डायरेक्ट. और जो प्रोग्राम ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उनका पेमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट. जो लाइटिंग आपके क्लासरूम में चल रही है, एसी चल रहा है, लाइटिंग यूज हो रही है टू रन द क्लास, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और कोई बाहर कॉरिडोर की कोई लाइट जल रही है, देन सच लाइटिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. मटेरियल जिससे डायरेक्टली प्रोडक्शन बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑफ पेन. आप जब इस पेन को बना रहे हैं, इसमें कुछ प्लास्टिक यूज हुई, कुछ इंक यूज हुई, देन सच एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल. और कुछ और मटेरियल आपकी फैक्ट्री में पड़ा होता है जो कि डायरेक्टली नहीं लगता. आपके पास कुछ ग्रीस पड़ी हुई है जो मशीन में जगह जगह पार्ट्स में लगाई जाती है, सच मटेरियल इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल. कोई कॉटन बेस पड़ा हुआ है, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल. क्लियर? नाउ इंक्लूजन ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट कंपोनेंट, indirect material, indirect labor, and indirect expenses is called overheads. Is called overheads. Overheads means extra expenses. जब हम बेटा इनडायरेक्ट को सबको ऐड कर देंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स. एंड ओवरहेड्स is also classified into three category or three head. Number first overhead is factory work, manufacturing or production overhead. आप कुछ भी कह सकते हैं, ऑल आर सेम. फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड. मतलब एनी ऑफ द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फैक्ट्री इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. लाइक फॉरमैन की सैलरी, लाइक फॉरमैन सैलरी, repair and maintenance expenses of machinery, of plant and machinery, depreciation on plant and machinery, power, fuel and gases, other expenditure may also be possible. So all expenditure is classified or treated as factory overhead, work overhead, manufacturing overhead or production overhead. Now the next is office and administration overhead. Or administrative overheads. Expenditure which are related to office, which are related to administrative work is called office and administration overheads. Like the example is salary of office staff, depreciation on office furniture, clear? Electricity bill of office,
telephone bill of office, stationery expenditure. These are some examples. All expenditure is treated as office and administrative overheads. And the third one is selling and distribution overheads. मतलब expenditure related to sales and distribution of goods is called selling and distribution overheads. The example is advertisement, depreciation on delivery vans, salesman commission, discount on sales, this type of expenditure is classified under the selling and distribution overheads. Clear? This is the total or all components of the sale. The primarily component is material, labor and expenses. And all the primarily component is divided into two parts: direct material, direct labor, direct expenses and indirect expenses, or inclusion of all the indirect material, indirect labor and indirect expenses is called overheads. And overheads is also further classified into three categories. Number first, factory overhead, number second, office overhead, और number third is selling overheads. तो अगर बेटा हम इन सबको ऐड कर दें, मतलब if you want to calculate the cost of the product, सपोज आप एक नया गुड्स बनाना चाहते हैं, बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. अब कैसे ऐड करेंगे? क्या किसी भी चीज को कहीं पर भी ऐड कर देंगे? क्या देयर इज सम डेफिनेटली यूनिवर्सल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट? मतलब you cannot use your own method or own format to calculate the cost. You have to use the common format to calculate the cost. Then such common format is treated as cost sheet. मतलब whenever you present the data of cost in front of management, in front of owner of the company, so you have to prepare cost sheet under the appropriate format to present the cost data in front of the management. Now question is how to calculate the cost? And to calculate the cost, we will prepare cost sheet. So now question is how to prepare the cost sheet. So beta, this is the format of cost sheet. ठीक है जी, how to prepare cost sheet? Format is divided into only two parts. Particulars and amount. Clear? Now first is direct material,
or raw material consumed. Number second, direct labor. And number third is direct expenses. Direct material, direct labor, and direct expenses. Now the total is prime cost. बेटा पहली लाइन में क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम. सपोज बेटा इन द क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज गिवन. Direct material straightforward is not given in the question. In that case, we have to calculate cost of material consumed. मतलब बेटा गुड्स को बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ. When we will calculate when opening, purchase and closing of material given in the question. Then how to calculate? Opening stock of raw material, plus raw material purchase plus expenses on purchase. मतलब परचेज करने में जो आपने पैसा खर्च किया, लाइक कैरीज इनवर्ड. जो गुड्स को आपने परचेज करने में खर्च किया, फ्रेट इनवर्ड. कस्टम ड्यूटी. बेटा आपने 1 लाख रुपए का सामान लेके आए और 5,000 रुपए गाड़ी वाले ने उसका भाड़ा ले लिया, फ्रेट ले लिया, कार्टेज ले लिया. सो दिस इज एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस scrap value of raw material and minus closing stock of raw material. इसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. बेटा आपके पास कुछ मटेरियल था जो खराब हो गया और आपने उसको कम प्राइस पर बेच दिया as a scrap. So this is called scrap value of raw material. Clear? So direct material or raw material consumed, direct labor and direct expenses. तीनों को ऐड किया तो बेटा क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट. आफ्टर द प्राइम कॉस्ट हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड ऑल आर सेम. हम इसको यहां पर ऐड कर देंगे. आफ्टर दिस बेटे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. After opening stock of work in progress minus closing stock of work in progress, this is called factory cost or work cost. This is called factory cost and work cost. Factory cost and work cost.
Now add office and administrative overhead. Office and administration overheads. Now, after office and administration overhead, the total is cost of production. This is the cost of production. Cost of production means beta this is the cost of new unit produce. जो आपने नया बनाया ये उसकी कॉस्ट है. अब ऐसा भी हो सकता है कुछ आपके पास पहले से बना पड़ा हो, कुछ आपने जो बनाया और जो पहले पड़ा था उनमें से बेच दिया. All the situation may be possible. So after cost of production, बेटा हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट. हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट इन इनर कॉलम. How to calculate cost per unit? Cost of production and divided by unit produce. इसको बेटे से निकाल के इनर कॉलम में रख लेंगे. नाउ ऐड करेंगे इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. बेटा कितने आपके पास ओपनिंग स्टॉक हैं एंड कितनी उसकी वैल्यू है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन. हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा और अगर नहीं दिया सो डेफिनेटली कुछ हिंट दिया होगा टू वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. Definitely. And minus closing stock of finished goods. जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच गया. सो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट एंड मल्टीप्लाई बाय ये वाला कॉस्ट पर यूनिट. हम एक मेथड मान के चलते हैं फीफो. दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो हमने पहले बनाया हम उसको पहले बेचेंगे, जो हमने बाद में बनाया उसको हम बाद में बेचेंगे. इसलिए जो आपके पास बच गया वो किस रेट का बच गया, जो आपने नया बनाया उस रेट का. दैट्स बाय द क्वांटिटी और यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट to find out the value of closing stock of finished goods. इससे इसकी वैल्यू निकल आएगी. इनको प्लस माइनस करके हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया. इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स. और अगर बेटा हम इसको सेल्स में से माइनस कर दें, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सो रिमेनिंग विल बी प्रॉफिट.
or cost plus profit equal to sales. So this is the format of cost sheet. Direct material, direct labor, direct expenses, तो total is prime cost. Prime cost में add करेंगे factory overhead, then opening stock of WIP minus closing stock of WIP, so total is the factory cost or work cost. उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सो टोटल इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी विल फाइंड आउट, वी विल कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट इन द इनर कॉलम. एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. नाउ ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सो वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी गिवन एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. एंड हाउ टू वैल्यूट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? नंबर ऑफ यूनिट इन क्लोजिंग एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. So after addition and subtraction of opening and closing stock of finished goods, so remaining is the cost of goods sold. What is cost of goods sold? बेटा जितनी यूनिट हमने सेल कर दी ये उसकी कॉस्ट है. नाउ ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सो टोटल इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स और सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. Whenever we need to prepare the total cost of the product, so definitely you have to prepare the cost sheet. Now this is the question. My notes is already attached, ठीक है ना, in the link, or I have already shared the note in class also. So this is the question. From the following information, prepare a statement of cost and profit per unit. And some of the information is given regarding the cost. So हमने क्या बनाना है बेटा? हमने बनानी है क्या है? Cost sheet. Clear? So just read the question, pick the figure and put into the appropriate place under the format, then you can easily calculate the cost. Clear? So बेटा सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल. How much direct material? 45,000. आगे लिखा है डायरेक्ट लेबर 1/3 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. देन हाउ मच टोटल डायरेक्ट लेबर? दिस इज द 1/3 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. एंड हाउ मच डायरेक्ट मटेरियल? 45,000. बेटा इसका 1/3 कितना आ गया? 15,000. डन. डन. नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 20% of direct material cost and direct labor cost. That is कितना बेटा? 20% ऑफ किस किस का? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर का. मतलब 60,000 का 20% कितना आ गया? 12,000. So direct material plus direct labor plus direct expenses, so total is the prime cost. So prime cost is 72,000. After the prime cost, now add factory overhead, work overhead, manufacturing overhead or production overhead, all are same. Done. Factory overheads 1/9 of prime cost. कितना लिखा बेटा? ये लिखा 1/9 ऑफ प्राइम कॉस्ट. एंड प्राइम कॉस्ट कितना है? प्राइम कॉस्ट इज 72,000. कितना आ गया? 8,000. बेटा आफ्टर फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इफ गिवन इन द क्वेश्चन. सो नाउ चेक इन द क्वेश्चन. Office overhead is given, selling overhead is given, units produced is given. So no opening and no closing stock of WIP is given. So just leave it. So total
80,000 is rupees factory cost or work cost. Clear? After factory cost or work cost, now add office and administration overheads. क्या लिखा बेटा क्वेश्चन में? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस 25% ऑफ वर्क कॉस्ट. तो कितना आ गया ये आ गया आपका ये बेटा आ गया आपका कितना 20,000. सो ऐड किया, दिस इज द 1 lakh एंड 1 lakh इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मैंने बेटा बताया था जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए तो क्या निकालना आपने? कॉस्ट पर यूनिट. एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन divided by number of unit produced. Now check in the question, unit produced is 100. ये बेटा कितना आ गया? ये आ गया आपका 1000 रुपीज पर यूनिट. आपकी एक यूनिट कितने बन के तैयार होती है? 1000 रुपीज में. आपने कितनी बना ली? 100. कितना रुपए आपका खर्च हो गया? 1 लाख. क्लियर? नाउ बेटा मैंने बोला था यहां पर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. यहां तक हो गया बेटा. ऑफिस सेलिंग रह गया. यूनिट प्रोड्यूस डन. यूनिट रिमेन अनसोल्ड 10% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, दैट मीन्स 10 यूनिट्स. ये क्या बेटा? क्लोजिंग. यूनिट रिमेन अनसोल्ड, जो बिकी नहीं, जो क्लोजिंग है. 10% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना बनाया? 100. 100 का 10% कितना आ गया? 10. बट नो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो लीव इट. मैंने तो लिख दिया बेटे यहां पर प्लस. आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा. क्लियर? सो लीव इट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. माइनस करना आपने. Closing stock of finished goods. How many unit in closing? 10. और मैंने बेटा क्या बोला था? मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट. वट इज द कॉस्ट पर यूनिट? 1000. सो वट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? इज रुपीज 10,000. ये कितना आ गया बेटा आपका? 90,000. इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 90,000. Now add selling and distribution overheads. क्या लिखा बेटे यहां पर? selling and distribution expenses is 10% of cost of goods sold. तो बेटा 10% कितना आ गया? 9,000. तो टोटल कितना आ गया? 99,000. So this is called cost of sales. How much cost of sales? 99,000. And how to calculate the cost? Sale minus cost equal to profit, or cost plus profit equal to sales. You can find out the cost according to the information given in the question. Now check in this question, sales is given. How much sales is given? This is 1,25,000. So sale minus cost, so remaining is profit. And how much profit? 26,000. बेटा चार में से आपको कुछ भी दिया हो सकता है. या तो सेल दिया हो, या सेलिंग प्राइस दिया हो, या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हो, या प्रॉफिट ऑन सेल से दिया हो. आपको चार में से कोई भी एक चीज दिया होगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और टू फाइंड आउट द सेल्स. ये मेरी फर्स्ट केस है, फर्स्ट सिचुएशन है. पहला केस क्या है? अगर सेल्स गिवन है तो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट? सेल्स माइनस कॉस्ट, रिमेनिंग इज द प्रॉफिट. क्लियर? सेम क्वेश्चन, बट देयर इज ओनली वन चेंज. सेम क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज ₹1250 per unit. सो बेटा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स? 99,000. यहां तक तो क्वेश्चन सेम है.
यहाँ तो क्वेश्चन सेम है. How much cost of sales? 99,000. We have already solved the question because question is same. Now we can find out the sales because selling price is given. So beta, how much the sale value? Number of units sold 90. कैसे पता लगा? बेटा हमने कितना बनाया था यूनिट? 100. 100 में से 10 हमारी बच गई. That means we have sold 90 unit and multiply by what is the selling price? This is 1250. Then how much total sales? This is 1250 and multiply by 90. So sales is 1,12,500 and sales minus cost beta 13,500. Remaining is profit. This is the second case, second situation. If sales is given, then you can directly put the sales. If selling price is given, then first you have to calculate the sales. And how to calculate the sales? Number of units sold multiply by selling price. Then you can find out the sale, and sale minus cost, so remaining is the profit. Third case. Question is same. But the next case is profit 20% on cost. So beta, cost of sales is rupees 99,000. मैंने आपको बेटा क्या बोला? Cost plus profit equal to sales or sales minus cost equal to profit. In this question, cost is given. बेटा क्या लिखा है? Profit 20% on cost. So how much cost? 99,000. इसका मैंने कितना कर दिया बेटा? 20% of 99,000 कितना आ गया? This is 19,800. And बेटा रूल क्या है? Cost plus profit equal to sales. So 1,18,800 is the sales. This is the third case or third situation. Now this is the fourth case, and fourth situation is most important. Here क्या लिखा है? Profit 20% on sales. बेटा how much cost of sales? यहाँ क्या निकालना है आपने? सेल्स लिखना है. सेल्स डिफरेंस क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट. क्वेश्चन में क्या लिखा है? Profit 20% of sales and sales is not given in the question. बेटा मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला क्या बताया? Cost plus profit equal to sales. अगर बेटा प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट कितना होगा? 80. प्रॉफिट अगर 30 है तो कॉस्ट कितना होगा? 70. प्रॉफिट अगर 25 है तो कॉस्ट कितना होगा? 75. क्योंकि सेल्स हमारी कितनी है? 100. क्लियर? अज्यूम कर लेते हैं बेटा. अज्यूम सेल्स इज 100. इफ द प्रॉफिट इज 20, सो डेफिनेटली बेटा कॉस्ट विल बी 80. ये मैंने बोला ना आपको. तो अगर बेटा 80% पार्ट हमारा 99,000 है, सो बट विल बी द 100% पार्ट. सो 99,000 डिवाइड बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. So this is 1,23,750. ये क्या आ गया? सेल. बेटा 24,750 क्या आ गया? प्रॉफिट. इन एनी ऑफ द क्वेश्चन केवल बेटा एक सिचुएशन होगी, या टोटल सेल दिया होगा, या सेलिंग प्राइस दिया होगा, या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स. So I have explained all the four situations in one question. Now next question. This is the question number 5 in my notes. Now how to prepare the cost sheet? How to prepare the cost? How to find out the cost?
From the following data relate to a manufacturing of a standard product during the 4 week. Raw material consumed, direct wages, machine hour worked, machine hour rate, office overhead, selling overhead, unit produced 20,000, units sold 18,000 at rupees 2.5 each. You are required to prepare the cost sheet. How to prepare the cost sheet? डायरेक्ट मटेरियल और मटेरियल कंज्यूम एक ही बात है बेटा. कितना दिया है? 20,000. डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट वेजेस बोथ आर सेम, 12,000. And direct expenses is not given in the question. So beta, this is the prime cost 32,000. Now plus factory overhead. Expenses which are related to factory is called factory overhead. क्वेश्चन में क्या लिखा बेटे? मशीन आर वर्कड. और मशीन कहां पे चल रही है? फैक्ट्री में. कितने घंटे काम हुआ? 900 आवर्स. और रेट कितना? मशीन रेट ₹4 पर आवर. बेटा 1 घंटे मशीन चलती है, कितने रुपए खर्च होता है? ₹4. No opening and closing WIP is given, so leave it. So this is called factory cost or work cost. Clear? 32,000 plus 36,000, this is 35,600. Plus ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है लिखा बेटा. ऑफिस ओवरहेड 15% ऑन वर्क कॉस्ट. सो बेटा 35,600 का कितना परसेंट? 15%. दिस इज 15%. दिस इज 5340. आफ्टर एडिशन ऑफ दिस इज 40,940. इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपको आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने क्या बताया? आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट. एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस. एंड हाउ मेनी यूनिट प्रोड्यूस? यूनिट प्रोड्यूस इज 20,000. तो डिवाइड किससे करना बेटा? 20,000 से. सो दिस इज 2.047 इज द कॉस्ट पर यूनिट. हम 1 यूनिट बनाते हैं, कितना खर्चा आता है? ₹2.047. प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. बेटा चेक करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. क्या लिखा है? यूनिट प्रोड्यूस 20,000. यूनिट सोल्ड 18,000. तो बेटा इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग कितना बच गया? 2,000. कितना बनाया? 20. बच कितना गया? 18. इसका मतलब बेचा कितना? 18. इसका मतलब हमारे पास बेटा 2,000 अभी बच गया. तो ओपनिंग तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्या है? क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हाउ मेनी यूनिट्स? 2,000. क्या करेंगे? इसका रेट लगाएंगे बेटा 2.047. दिस इज 4094. माइनस कर देंगे. सो दिस इज 36,846. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऐड क्या करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. क्या लिखा बेटा? सेलिंग ओवरहेड 37 पैसा पर यूनिट. बेटा फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड हम चार्ज करते हैं ऑन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस.
but the selling overhead will be charged on number of unit sold. सिंपल सी बात है, जितना बेचेंगे उतना खर्चा होगा, बट ऑफिस ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड जितना बनाएंगे उस पर खर्चा होगा. सो बेटा सेलिंग ओवरहेड कितना दिया है आपका 37 पैसा पर यूनिट. हमने कितना बेच दिया 18,000. सो बेटा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 37 पैसा, दिस इज 6660. ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. $43506. ठीक है बेटा, यहां लिख देता हूं आपको मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स 43506. यहां पे क्या लिखना है सेल्स, यहां क्या जाएगा प्रॉफिट. हाउ मच सेल्स लिखा बेटा 18,000. आपने सेल किया 2.5 का एक. हाउ मच सेल्स, सो सेल्स वैल्यू आपकी आ गई बेटा 45,000 माइनस दिस, सो रिमेनिंग इज द प्रॉफिट. दिस इज 1534. क्लियर. नाउ this is question number 2 in my notes. Prepare the following, from the following information prepare a cost sheet or a statement of cost. Beta sum of the opening and sum of the closing data is given. ये ओपनिंग किसका है रॉ मटेरियल का. ओपनिंग WIP. WIP means goods which is not fully completed, goods which is under process. But if any of the goods under process, that means कि some of the material, some of the labor, some of the overheads we have incurred. हम कुछ मटेरियल लगा चुके होंगे, हम कुछ लेबर लगा चुके होंगे, हमने कुछ ओवरहेड लगा दिया होगा. तो बेटा क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, चेक करो आप, दिस इज द WIP. And WIP includes the three component material, labor and work overheads. तो अगर हम इन तीनों के स्टॉक को ऐड कर दें, मटेरियल, लेबर एंड वर्क ओवरहेड को, हम इसको क्या बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी WIP. बेटा मैंने इन तीनों को यहां पर ऐड करके रखा हुआ है. सो दिस इज द 31,200. ऐसे बेटा क्लोजिंग में भी तीन कंपोनेंट है, इन तीनों कंपोनेंट को जब ऐड करेंगे सो दिस इज 38,400. फिनिश गुड्स में क्या लिखा है, ओपनिंग कितना लिखा है 200 यूनिट एट द रेट 84 और क्लोजिंग कितना दिया है 1600 यूनिट्स. यहां लिखा बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज ऑन परचेज, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, आगे लिखा वेजेस, वर्क ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड, और यहाँ लिखा है सेल्स 7600 यूनिट एट ए प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स. ठीक है जी. सो फर्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉ मटेरियल इज नॉट गिवन. हमको निकालना क्या पड़ेगा बेटा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. How to calculate? बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 29,500, ये वाला, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 plus carries on purchase 5,000 minus scrap value 1,500 and minus closing stock of raw material 36,000.
बेटा हमने ऐसे प्लस माइनस किया तो ये हमारा आ गया 1,80,000 इज ए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर। अब हम लोग बनाते हैं क्या, कॉस्ट शीट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1,80,000। अब क्या ऐड करते हैं हम लोग उसमें बेटा, वेजेस। वेजेस एंड लेबर बोथ आर सेम। हाउ मच वेजेस, दिस इज 2,97,000। डायरेक्ट मटेरियल और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। सो दिस इज द प्राइम कॉस्ट। This is the prime cost. This is 4,77,000. Now बेटा ऐड हम लोग करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या लिखा है जरा चेक करें। वर्क ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट द रेट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बेटा कितना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाउ मच डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 297। इसका कितना परसेंट है, 60%. This is 1,78,200. In this question, work in progress is given. So, add क्या करेंगे बेटा, opening stock of WIP. How much opening stock of WIP? This is 31,200. Minus closing stock of WIP. How much closing stock of WIP? And total is 38,400. This is called work cost or factory cost. ठीक है जी। ये बेटा प्लस माइनस करके आ गया आपका 6,48,000। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, administration overhead are absorbed at the rate ₹12 per unit produce. Now बेटा हमें चेक करना पड़ेगा कि how many unit produce, कितना पैसा लगता है आपका, ₹12 per unit. Now check whether unit produce is given. चलो बेटा देख लेते हैं। सेलिंग ओवरहेड लिखा सेल 7,600 यूनिट, but the unit produce is not given in the question. If unit produce is not given in the question, so can you calculate the unit produce? Yes. How to calculate the number of unit produce? But the formula है unit sold plus closing stock unit or minus unit of opening stock. This is a formula to calculate number of unit produce. Now put the data into the formula. How many units sold? 7,600. How many closing stock? 600, 1,600. How many opening stock? Now check, 200. So बेटा यूनिट प्रोड्यूस हमारा कितना आ गया, 9,000 यूनिट्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, 9,000 and multiply by 12 rupees which is given in the question. This is 1,08,000. इसको बेटा क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाउ मच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज 7,56,000। हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट।
how to calculate cost per unit, cost of production divided by unit produce, how many unit produce, 9,000, so beta cost is 84 rupees per unit, cost is 84 rupees per unit. आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करना, आपने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्या लिखा बेटा, फिनिश गुड्स 200 यूनिट्स एट द रेट 84. बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 7,56,000. Opening stock of finished goods, बेटा 200 यूनिट एट द रेट 84 इज गिवन इन द क्वेश्चन. हमारे पास 200 यूनिट पहले से पड़ी हुई हैं और कितने रुपए की एक है, 84 रुपीज का एक. ये कितना आ गया 16,800. नाउ बेटा माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हाउ मेनी क्लोजिंग स्टॉक? Closing stock is 1600 units. And how to calculate the value of closing stock? Number of unit in closing multiply by cost per unit. And here cost per unit is 84. But this is the chance कि ओपनिंग की यूनिट भी 84 रुपीज है और नया बनाया उसकी भी 84 रुपीज है. दैट मीन्स बेटा पहले जो बनाया था और हम जो आज जो बना रहे हैं उनकी रेट्स में कोई चेंज नहीं है. If is there any change in the rate, so definitely beta आपका cost per unit may be increase or decrease. If rate increase, then cost per unit will be increase, और if the rate decrease, तो बेटा आपका cost per unit क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बट यहाँ पे चांस की बात है. तो हमने क्या करना है यहाँ पर 1600 multiply by 84. So this is 1,34,400. इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दिस इज 756 प्लस 16,800 माइनस 1,34,400. दिस इज 6,38,400. नाउ बेटा यहाँ पर हमको ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. नाउ चेक इन द क्वेश्चन. The selling and distribution overhead are absorbed at the rate 20% of cost of goods sold. So बेटा ये कितना आ गया आपका, this is 20% of 6,38,400. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. 1,27,680. So total is 7,66,080. This is the cost of sales. यहां लिखेंगे बेटा सेल्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एट द रेट 10% ऑन सेल्स, एंड सेल्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. क्या जूम करेंगे बेटा, सेल्स 100, प्रॉफिट कितना है 10, दैट मीन्स कॉस्ट कितनी होगी आपकी 90, बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स. तो बेटा अगर आपका 99% पार्ट 7,66,080 रुपीज है, सो बट विल बी 100% पार्ट, तो 7,66,080 डिवाइड बाय 90 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ये आ गया बेटा 8,51,200. ये हमारी क्या आ गई, सेल्स. 8,51,200 माइनस कर देते हैं हम इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो बेटा रिमेनिंग 85,120 इज द प्रॉफिट. सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ बेसिक कॉस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, other than some of the theory part which is given in my notes. Okay, so total 7 question is there in my notes, so please solve the remaining question with the same pattern. Okay,
So now thank you so much all of you